Hello guys, hi. Uh, we had done almost 25 to 30 questions yesterday. So now we will begin with the next questions which we had to do. These questions are important for PU LLB, DU LLB, MHSET, SLAT, CLAT. Every exam in which a little bit of legal GK comes, it's important. Anything in which uh, legal reasoning comes, they are important. They are made by myself only, and they are taken away from books, very famous books of legal reasoning, as well as my own knowledge. So let's begin without wasting any time. Which of the following best describes the legal phrase amicus curiae? So amicus curiae, what do you mean by the word amicus curiae? Now this is a legal GK word, right? The legal GK word. So what is amicus curiae? It's not a maxim because these are only two words. So what do you mean by it? The answer is amicus curiae means friend of the court. So an amicus curiae is someone who is not party to a case and may not have been solicited by a party. He assists the court in by offering information, expertise, or insight that has a bearing on the issues in the case. So I studied in NLU Punjab. Now there was my famous professor, Mr. Krishnan, right? Now sir used to be an advocate, he was a senior advocate, and he used to practice in the Delhi High Court before. So he was asked by the CJI to go and be an amicus curiae of the court by submitting an inquiry report in the Taj Trebizond case. Now this Taj case was related to like excessive mining done around Agra, and he collected all the information, and then he submitted it to the Supreme Court. So basically these are amicus curiae. He means a friend of the court, and option B is correct. Who among the following was the first person to be directly appointed as the judge of the Supreme Court? So kindly give the correct answer. First person directly appointed. So how can you be appointed to the court? First of all, like let us say you have 10 years of service in the High Court as a senior advocate or an advocate. Then you need to be a person of repute, because it's not necessary that you are an advocate with 10 years of service. You need to be a person of repute. Collegium, that comprises of 5 most senior judges of Supreme Court, including the CJI, appoints you. So this is very important, that who was the first person to be directly appointed as the judge of the Supreme Court? Answer is Kuldeep Singh. Kuldeep Singh was directly appointed from the bar, and he was a practicing lawyer before, hence option C is correct. So you can see it here. Justice Kuldeep Singh was one of the first person to be directly appointed as a judge of the Supreme Court. Using your influence over another person to take undue advantage is contract formation, is called undue influence. Kindly read the question. It's about a doctor, whether he is taking undue advantage or not. Kindly read the question. So kindly read the question. A is a doctor who has been left stranded along with other people in the village during the time of river floods. During this time, he meets several persons who are stranded by the river water and can't go out of their tiny village. Doctor starts to charge exorbitantly, and after a normal eye treatment, demand 25 lakhs from a village woman. The old woman files the case in a court of law. So kindly see it that there is a now. What is undue influence is that a person in a fiduciary capacity uses his position so as to take undue advantage. And in this case, as you can clearly see, that A is a doctor, and there are river floods. There are people who are stranded by river water. And for a normal eye treatment, he is charging around 25 lakh rupees from a village woman. So he is misusing his position. 25 lakhs for an eye treatment is not the charge even of a 5-star hospital. So can the doctor successfully defend the case for his fee? Right? So kindly give the correct answer.
There was an undue influence by the doctor on the old woman, and hence the woman will succeed. So option C is correct. Now let's see about other options. The judge will decide the case as facts are quite complex and require judicial discretion. This is only the option given to confuse you by the examiner. The services offered by the doctor are of a professional nature and he will successfully defend the case. Yes, they are of professional nature, but during the time of floods, you cannot charge 25 lakhs for a simple eye treatment. The woman entered the contract out of free will and she will have to pay the doctor. No, that's not the case, because the doctor first of all treated and then said that 25 lakhs is going to be the charge. That's too much. And also doctor is in a fiduciary capacity. The charge has to be the charge has to be justified. That's why whenever you go to hospitals, they give you a detailed breakup. Okay, oxygen cylinder 10,000, bed fee 30,000, and per day ventilator fee 20,000, and that's why they make a big bill like 3 lakhs, 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs if you stay for 3-4 days. But just for a normal eye treatment that lasts for around half an hour, you cannot charge 25 lakh rupees. So in a certain instances, the contract law recognizes that a person's free will may also be influenced by another arguments made by the person should be set aside, right? So undue influence is respect for individual autonomy and need to ensure that people have freely chosen a course of action. Whether the village woman had any free will to choose the course of action, she was stranded in a flooded water, only one doctor, only one woman. Now she has to go to this doctor to have that eye problem removed. So she didn't have a very free will. Okay, you are charging 25 lakhs, I will go to another doctor who is only charging 5,000 rupees. She didn't have it. Right? He was charging an exorbitant amount of money after a normal eye treatment demand. Right? So he used floods for his own advantage. So the contract law says that these kinds of contracts are voidable. If the woman goes to the court to have it set aside on the charges of undue influence, then it will be set aside. A communication of acceptance is must for a valid contract. सो मैनेजर जो हैं होटल के वो रिसीव करते हैं लेटर विच इज़ एक्चुअली टू एन ऑफर टू सप्लाई गैस सिलेंडर सब्सिडाइज रेट पे कंपनी को देना है. ही एक्सेप्ट्स द लेटर इन हिज माइंड एंड इवन रोट अ वर्ड येस ऑन इट एंड केप्ट इट इन हिज ड्रॉयर. सो काइंडली आप देखेंगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है. आपको मैं 15 सेकेंड दे रहा हूँ, काइंडली आप देखिए. आंसर है इसका कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड या वैलिड नहीं है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. ये वॉइड तो नहीं है, खैर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. उसका आंसर ये है कि कम्युनिकेशन ऑफ लेटर जो है वो दूसरे पर्सन को तो दिया ही नहीं गया. मान लेते हैं आपने एक कार खरीदनी है, ठीक है, आपसे कोई कार खरीदने आया है आपकी और उस बंदे ने ऑफर किया आपको कि प्लीज़ ये कार आप ले लोगे आप 4 लाख की. तो आपने लिखा, उसके जो लेटर है उसने दिया एक्सेप्टेंस का, उसमें आपने लिख दिया येस, लेकिन उसको फिर आप अपने ड्रॉयर में डाल दिया और इस बंदे को बताया ही नहीं. तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी है. आप अपनी एक्सेप्टेंस दूसरे पर्सन को भी तो बताओगे ना. तो अगर आपने वो नहीं बताया है तो फिर नहीं हो सकता है. ठीक है. So communication of letter being acceptance was not given to the company selling gas at subsidized rates. Hence the communication of acceptance is not, it's not a valid contract. आगे चलें. सो ये आप प्रिंसिपल देखिए. An agreement without free consent can be enforced only at the option of party whose consent was not free. So ये आपने बताना है. आंसर इसका ये है कि वॉइडेबल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके, मान लेते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कभी भी देखेंगे कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दोनों से अलग होते हैं. मैं आपको बता देता हूँ. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि किसी एक पार्टी के साथ धोखा हुआ होता है, तो जिस पार्टी के साथ धोखा हुआ होता है ना वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म.
धोखा करने वाली पार्टी नहीं कर सकती. सो लेट मी से, अगर मान लेते हैं कि आपकी एक पत्नी है और वो आपको कह रही है कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, नहीं तो बालकनी से कूद जाऊंगी. जैसे शोले पिक्चर के अंदर बसंती के लिए वो धर्मेंद्र करता है कि मैं कूद जाऊंगी यहाँ से, नहीं तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो. अब आप क्या करते हैं, कोअर्जन के अंदर उसके नाम पे पूरी प्रॉपर्टी के दस्तावेज साइज कर देते हैं. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ये कब तक वैलिड रहेगा? दोनों के साइन है इस पे, ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक कोर्ट में नहीं गए आप. राइट, क्योंकि कोर्ट को क्या पता लग रहा है कि उसने कब कराया कब नहीं कराया. वो तो आप कोर्ट में जाओगे, आप बोलोगे देखो जी मेरे से धोखे से कराया है इसने साइन ये. ठीक है ना, आप ही जा सकते हो. क्या पत्नी खुद जा सकती है, नहीं मैंने धोखा किया था इसके साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर दो? आंसर है नहीं. आंसर है नहीं, नहीं जा सकती है वो. ठीक है, वो नहीं जा सकती. सिर्फ दूसरी पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ होता है, या पंजाबी में कहें तो धक्का हुआ होता है, वो ही जा सकता है. ठीक है, सो रोहित ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ सोहम टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय थ्रेटनिंग सोहम्स मदर. सो ये देख सकते हैं आप, कंसेंट उन्होंने लिया बाय थ्रेटन करने के साथ उनकी मदर को. तो कौन एनफोर्स कर सकता है इस एग्रीमेंट को? ठीक है, कौन कर सकता है बताइए. आंसर है इसका, सोहम कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट बिकॉज इट इज वॉइडेबल एट इज बिहेवियर. अब देखो, सोहम की मदर को धक्का देके सोहम से कॉन्ट्रैक्ट कराया ना, तो अगर सोहम कोर्ट में नहीं गया तो सोहम ने एनफोर्स कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. और अगर सोहम कोर्ट में चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वॉइडेबल था, तो कोर्ट वहां पे उसको वॉइड एबल, यानी कि एबल है वॉइड होने के, तो कोर्ट उसको फिर वॉइड घोषित कर देता है. सो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन कोर्जन, थ्रेट, फॉल्स स्टेटमेंट में अगर किसी ने किया, इम्प्रॉपर परसुएशन कैन बी वॉइडेड बाय द पार्टी हु वाज अ विक्टिम ऑफ अनफेयरनेस. बेसिकली यही कि धोखा जिसके साथ हुआ है. अब प्रिंसिपल देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी चैलेंज बाय वन ऑफ द पार्टीज, अगर वो देखेंगे कि जो असेंट है वो वॉज नॉट जेन्युइन बिकॉज सब्जेक्ट ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस. ये आपको मैंने पहले भी कराया था, ये फैक्ट्स यहां से स्टार्ट हैं इसके. ठीक है, वुमेन जो है उनके गुरु हैं, और वो गुरु जो है वो फेक बाबा हैं, तो उन्होंने कॉर्डियल रिलेशनशिप वुमेन के साथ बनाया है और सारी संपत्ति उसकी अपने नाम पे करवा ली है हेवन के उस पे. ठीक है, जब वो रिलीज हो जाती है आश्रम से, कुछ बचता नहीं है उसके पास, तो वो कोर्ट जाती है कि प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को असाइड करो, क्योंकि वो अनड्यूली इन्फ्लुएंस थी बाय गुरु. तो अब आप आंसर बताइए कि विल द केस फाइल्ड बाय द वुमेन सक्सीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. एक बार आप देख लो क्वेश्चन दोबारा. जिनको क्वेश्चंस देखने में थोड़ा टाइम लगता है आप पॉज कर लो, क्योंकि लेक्चर तो यूट्यूब पे डला ही हुआ है. सो शी विल सक्सीड बिकॉज गुरु जो थे वो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट में थे. रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट को लीगल लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? फिड्यूशरी रिलेशनशिप. हमेशा याद रखें, टर्म्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पेपर के अंदर सक्सीड करने के लिए. विद हर एंड ही एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर हर. So part C is correct. Party influence has the option to avoid terminate the contract. Influence can be fiduciary and of authority or over a person who has lost mental capacity to think due to illness, old age, etc. She will succeed because Guru had the relationship of trust with her and he exercised undue influence over her. A pact of voluntary non-fit injuria, that is an injury for which consent was taken, other than the pact to commit grievous hurt, death and suicide is not an offence, provided that the age of the person who has given his consent to suffer harm is above 18 years. So let us say आप मुक्केबाजी कंपटीशन में जा रहे हैं, 18 साल से ऊपर की आपकी एज है. अब आप मुक्केबाजी जब करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ हार्म होगा, लेकिन वो हार्म ये नहीं होगा कि कोई बंदा, आप किसी से ये करोगे एग्रीमेंट कि भाई मेरे को मौत के घाटी उतार देना. आप मारोगे एक दूसरे को, और कंपटीशन के अंदर जैसे मुक्केबाजी का है, फेंसिंग का है, कुश्ती का है, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत हर्ट तो होगा. तो कंसेंट वॉज टेकन अदर देन अ पैक्ट टू कमिट ग्रीवियस हर्ट, डेथ एंड सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस. तो अगर मान लेते हैं कि किसी पर्सन के साथ भी आप फाइट कर रहे हैं तो ग्रीवियस हर्ट नहीं कॉज कर सकता, यानी कि वो आपका ये नहीं कि वो आपका स्कल तोड़ दे, ठीक है, या आपका जिसे कह सकते हैं कि कान अलग कर दे, हाथ काट दे, आपका ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा. मर्डर भी नहीं हो सकता और सुसाइड करने के लिए भी आपको कमिट नहीं करे. तो अगर ऐसा कोई खेल या स्पोर्ट आप खेल रहे हो, आपकी एज 18 से ऊपर है, तो वो वैलिड है इंडियन लॉज के अंदर, क्योंकि आपने जो वो इंजरी है वो खुद ली है. भाई खुद खेलना है ना आपको, कुश्ती खुद खेलनी है आपको, फुटबॉल खुद खेलना है आपको. अब फुटबॉल में लग गया आपको, आपकी सांस चढ़ गई, फूल गई, तो वो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो. So A enters into a pact with a boy of less than 18 years of age to do fencing with each other for amusement. अब ये देखिए, यहाँ सिर्फ खेल के लिए किया जा रहा है. So they agreed to suffer any harm which may be caused in the course of fencing. Fencing ये होती है जैसे जब दो बंदे ये दो भाले टाइप्स लेते हैं, हाथ में पकड़ते हैं और उनके साथ खेलते हैं. B dies while playing and A is charged with homicide. तो B जो है वो मर जाता है और A को बोलते हैं कि आपने मर्डर किया है.
तो डिसाइड करें क्या ए गिल्टी है, ए नॉट गिल्टी है. जज विल डिसाइड. ए शुड नॉट बी चार्ज विद होमिसाइड बट अटेम्प्ट टू मर्डर. आंसर है इसका कि ए जो है वो गिल्टी है, बिकॉज जो बी लड़का था वो 18 साल से कम एज का था, राइट. 18 ईयर्स से कम एज का था, तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाती है लॉ के अंदर. अगर आप 18 साल से कम लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं तो वो कंसेंट नहीं मानी जाती है लॉ के अंदर, चाहे वो मिस्टेक है चाहे उसने झूठ बोला है. ने अभी एक केस देखा था जहां पर एक पर्सन को सिर्फ इसलिए जेल हो गई बिकॉज दैट गाय हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमेन हु वाज नॉट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. कोई डिफेंस नहीं चलता फिर, ठीक है. उसी तरीके से इसमें भी कोई डिफेंस नहीं चलता. 18 साल मेजॉरिटी की एज है, उसके हिसाब से ही काम चलता है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे जो इन्वॉल्व थे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो कौन कौन थे, कैसे अपॉइंट हुए थे, वो कैसे आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, नॉमिनेटेड थे, अपॉइंट थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल थे. काइंडली बताएं अपना आंसर. आंसर है इसका कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं. तो जो मेंबर्स इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. वर्ड LIB इज यूज्ड इन मेनी टाइम्स इन इंडियन लीगल प्रोसीडिंग्स एंड क्राइम नॉवेल्स. LIB मीन्स अ प्ली बाय एन एक्यूज पर्सन दैट ही. LIB का मतलब क्या है यहाँ पे? LIB अब लीगल जीके आ गई है, तो काइंडली अब आप लीगल जीके का आंसर कीजिए. LIB का मतलब क्या है? आंसर है LIB का मतलब बहुत सिंपल है. LIB का मतलब है ही वॉज प्रेजेंट एल्सवेयर. इसका उत्तर मैं आपको देता हूं. LIB जब भी यूज होता है, कब होता है यूज? मान लेते हैं कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है शिमला में रात को 9 बजे, ठीक है. पुलिस आई, आपको अरेस्ट करने लगी और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया. मान लेते हैं बॉयफ्रेंड है और वो गर्लफ्रेंड है, मर्डर कर दिया. अब आपके पापा बहुत बड़े इंसान हैं, चंडीगढ़ में मान लेते हैं, तो आपके फादर ने प्रोड्यूस कर दिया कि ये तो जी रात के 9 बजे पानीपत में था, ठीक है. ये देखिए, आप इसके व्हाट्सएप चैट्स देख सकते हैं, इसकी लोकेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, इसके लोगों का हम सबूत दिलवा देंगे. अगर फादर जो हैं आपके वो प्रूव करने में सक्षम हो जाते हैं कि ये पानीपत में था और शिमला में था ही नहीं, तो यहां पर फिर एविडेंस ऑफ LIB लग गया, यानी कि मैं यहां था ही नहीं. पानीपत छोड़िए, मान लेते हैं ये प्रूव कर देते हैं कि USA में थे, वीज़ा वगैरह नकली लगवा देते हैं और ट्रैवल रिपोर्ट पासपोर्ट से गलत बनवा देते हैं और पासपोर्ट ऑफिस जाके चेंज करवा देते हैं, तो आप फिर बच जाओगे, बिकॉज ये प्रूव हो जाएगा ना कि आप कहीं और ही प्रेजेंट थे. सो प्ली ऑफ LIB सेक्शन 11 के अंदर आती है इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर. सो अगर ए ने कमिट किया क्राइम एट कैलकाटा ऑन अ सर्टेन डे, तो अगर वो फैक्ट दे रहा है कि नहीं ए तो लाहौर में था, तो ये रेलिवेंट फैक्ट होता है और इससे बंदा जो है वो बच जाता है. A person who is usually of unsound mind but occasionally of normal would make a contract when he is not of unsound mind. So अरुण जो है वो हाउस में रहते हैं and अरुण is living in a house for unsound human beings in Agra from past 5 years. ठीक है, वो अकेले रहते हैं और कभी कभी वो रात को शीशा तोड़ते हैं, ठीक है. हमेशा वो ऑलमोस्ट अनसाउंड माइंड की स्टेट में रहते हैं और रेयरली बिकम करते हैं केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जेंटलमैन जोरावर के साथ एंड द केस रिच इज कोर्ट ड्यू टू सम लीगल ऑब्स्ट्रक्शन. तो जोरावर एक पर्सन आता है, वो उनके साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और कुछ लीगल पंगा होता है. तो अब इस केस में बताइए वेदर अरुण कैन फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. सो आप बताइए आंसर इसका क्या हो सकता है. Arun can make a contract when normal. Arun can make a contract for his own benefit. Arun can make a contract at any time whenever he pleases. Arun can never make a contract. आंसर है इसका ऑप्शन ए. देखिए इसका ऑप्शन ए क्यों है? अरुण कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नॉर्मल. अब यहां पे आप क्वेश्चन को देखिए, समटाइम्स एट नाइट, यानी कि नॉट ऑल टाइम्स, राइट राइट राइट. Arun generally remains in the state of unsound mind and rarely becomes capable of understanding things. यानी कि वो completely पागल नहीं है, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि वो साउंड स्टेट ऑफ माइंड में आता है. अगर इस टाइम पे जोरावर उनसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड घोषित हो जाएगा. सो अरुण कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ऑफ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो जो इस टाइम उसको बना रहे हैं तो वो केपेबल है अंडरस्टैंडिंग करने के और रैशनल जजमेंट लेने के अपॉन हिज इंटरेस्ट. ऑप्शन ए करेक्ट है. अ लीगल राइट अराइजेज आउट ऑफ लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट. काइंडली इसका आंसर बताइए आप. राजन एंड मोहन आर फास्ट फ्रेंड्स एंड बोथ ऑफ देम शेयर अ ग्रज अगेंस्ट चारू.
Rajan promises Mohan that in lieu of his services for car maintenance, he will either thrash Charu with sticks or threaten her to pay the money owed to Mohan. So देख सकते हैं अब रजन और मोहन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और चारू के अगेंस्ट ग्रज रखते हैं। राजन मोहन को प्रॉमिस करता है कि अगर कार मेंटेनेंस के पैसे जो हैं वो उसके बदले में अगर तू चारू को स्टिक्स से मारेगा या थ्रेटन करेगा कि वो मनी वापस दे दे मोहन का, तो वो फिर उसको माफ़ कर देगा कार मेंटेनेंस को, क्योंकि चारू से बदला लेना है। डिसाइड एज अ जज इज दिस अ वैलिड एग्रीमेंट अंडर द इंडियन लॉ और पार्टली वैलिड। आंसर है इसका द एग्रीमेंट इज इनवैलिड। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन क्या हो सकता है कि आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए वो करता हूँ, या कंसिडरेशन पैसा हो सकता है कि मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, आप प्लीज़ मुझे 25 लाख रुपए दे देना। पर यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, थ्रैशिंग और थ्रेटनिंग, कि ठीक है मैं तेरा माफ़ कर दूंगा कार मेंटेनेंस का जो खर्चा है, लेकिन जाके चारू को थ्रैश कर या उसको डरा धमका। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि कल ही मैंने आपको सिखाया था ये इलीगल एग्रीमेंट होगा, बिकॉज किसी को डराना धमकाना भारतीय दंड संहिता के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। So consideration or object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law, or it is of such nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent. So ये आप देख सकते हैं, so option B is correct. A legal right arises out of a legally enforceable agreement. So A promise करता है B को कि वो sugar cane देगा उसकी फैक्ट्री को under all circumstances in a period of 15 days. On 15 days suddenly A का जो ट्रैक्टर है वो खराब हो जाता है और वो फुलफिल नहीं कर पाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो B जो है A को कोर्ट पे ले जाता है। उसका ट्रैक्टर उसकी मर्जी से खराब नहीं हुआ, खराब हो गया। तो अब आप बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, क्या बी को डैमेजेस मिलेंगे ए से? आंसर है, आप इसका बताइए। आंसर इसका सी है, ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि आपका ट्रैक्टर खराब हुआ है, आप ही ने प्रॉमिस किया है अगर आप शुगर केन देते तो आपको पैसे मिलते। ट्रैक्टर को सही सलामत रखना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी ठेकेदारी नहीं है। और आपको अगर ट्रैक्टर ठीक नहीं था आपका, तो आप किसी और तरीके से मुझे सबमिट करते जो आपका पार्ट था करना, या आप और तरीके से मुझे देते, लेकिन वो आप नहीं दे पाए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अ लीगल राइट अराइजेज आउट ऑफ अ लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ओनली द वायलेशन ऑफ लीगल राइट गिव्स द ऑप्शन टू द पर्सन इंस्टीट्यूशन टू आस्क फॉर रिड्रेसल इन लॉ। सो अनिकेत प्रॉमिसेस चक्षु दैट ही विल सेल AK-47 टू हिम फॉर 1 lakh rupees. Chakshu arranges the money with great difficulty from money lenders, but Aniket does not sell her AK-47. Chakshu drags Aniket to the court for legal damages. Kindly इसका आंसर बताएं। आंसर इसका ये है कि आप जो है चक्षु क्या सक्सीड करेगी इन फाइलिंग द केस फॉर डैमेजेस, डिसाइड एज अ जज एंड गिव अ साउंड रूलिंग। द आंसर इज दैट चक्षु केस विल नॉट सक्सीड, इट विल नॉट सक्सीड, बिकॉज जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो आप AK-47 का कर रहे हैं, जो कि बैंड सब्सटेंस है। मैंने आपको कल ही बताया था कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, इलीगल एग्रीमेंट्स के अंदर क्या आता है कि आप बैंड सब्सटेंस को डील कर रहे हैं। अब आप AK-47 लेना चाहते हैं, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, लॉ है और ऑर्डर है, और ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। Who acts as the president of India when neither the president or the vice president is unable to discharge the functions? तो कौन एक्ट करता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नाइदर द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस? काइंडली अपना आंसर दें। द आंसर इज जब ना तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपने डिस्चार्ज कर पाते हैं फंक्शंस, तो फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं भारत के चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो डिस्चार्ज करते हैं फंक्शंस को। ऐसा हुआ भी था। Justice Hidayatullah, who was Chief Justice of India from February 1968 to 70, was sworn in as the acting president following the resignation of Vice President VV Giri, जिन्होंने presidential election को conduct करने का decision लिया था। पंचायती राज institution in Indian governance are established as per constitutional directions, mandate, vision of which of the following parts? पंचायती राज institution Indian governance में कौन से पार्ट से आते हैं? आंसर है इसका, पंचायती राज आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पार्ट पे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से वो आते हैं। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज को इफेक्ट दे दिया था। 74th अमेंडमेंट में म्यूनसिपैलिटीज का प्रोविजन है, ये 1992 के अंदर आए हैं सारे एक्ट्स। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज, 74th अमेंडमेंट में म्यूनसिपैलिटी। सो आर्टिकल 40 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट को ये इम्प्लीट करता है कि आप ऑर्गेनाइज करेंगे विलेज पंचायत और उनको पावर और अथॉरिटी देंगे जो कि नेसेसरी है टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था अप्रैल 1993 में, सॉरी 1993 में आया था, 92 में नहीं, 1993 में आया था।
अमेंडमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देता है स्टेट गवर्नमेंट को इन सेवरल इंपॉर्टेंट मैटर पर्टेनिंग टू दिस इंस्टीट्यूशन. सो ऑप्शन बी करेक्ट है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू क्रिएट इक्वालिटी इन रिमूविंग the prevalent inequalities. Which article is related to equal justice and free legal aid in the Indian Constitution? Kindly अपना आंसर बताइए. अपना आंसर बताएं प्लीज. टेक योर टाइम. आंसर इसका जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इनइक्वालिटीज को प्रिवेंट करता है. इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 39A. तो 39A का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड होना चाहिए. स्टेट शैल सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम दैट प्रमोट्स जस्टिस. इट मींस जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ. तो 39A बाद में आया था. तो इसके बेसिस के ऊपर फिर हमें, जैसे मान लेते हैं कोई बहुत ही पुअर पर्सन है, राइट, उस गरीब है बंदा, तो उसको जो है स्टेट देता है वकील करके. सो ये आर्टिकल 39A के अंदर आता है. ठीक है. आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज से रिलेट करता है? काइंडली अपना आंसर बताएं. अपना आंसर बताइए. आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट करता है, बहुत ही सिंपल, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स के साथ. सो आर्टिकल 44 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की स्टेट का एंडेवर होना चाहिए कि सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू है. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यूसीसी लागू तो है वहां पे, बट जो लॉ रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट आई थी अभी जो रिसेंट वाली थी, उसके अंदर बोल दिया था कि यूसीसी जो है ना तो लगाना फिजिबल है ना उसको इम्प्लीमेंट करना फिजिबल है. तो अभी का जो ट्रेंड है वो ये है कि यूसीसी नहीं आएगा. हम लीगल प्रिंसिपल्स की ओर चलते हैं. कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. A contract made by coercion is bad in the eyes of law. So A slaps and threatens B in high seas on Indian ship to enter into a contract with him for sale of textile. B enters into the contract and assures A of timely delivery of textiles. जब शिप पहुंच जाती है पोर्ट ऑफ सूरत पे तो वो फाइल करता है केस अगेंस्ट ए एंड वांट्स द कॉन्ट्रैक्ट टू बी सेट असाइड. अब इस क्वेश्चन में आप बताइए क्या आंसर हो सकता है. आंसर है इसका कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कोर्जन के कारण खत्म हो जाएगा. सबसे पहली बात तो आप यहां देखिए कि इंडियन शिप जो है वो, इंडियन शिप का मतलब है, देखो कहीं पे भी भारत की शिप हो और अगर उसके ऊपर आप हो तो उसमें भारत का झंडा फहरा रहा होता है, इसका मतलब वो भारतीय शिप है, भारत की प्रॉपर्टी है. अगर वो हाई सीज में है, हाई सीज मतलब इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है. अब उसने थप्पड़ मारा उसको, ठीक है, थ्रेटन्स किया उसको, स्लैप किया, थ्रेटन किया कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर. क्या ये कंसेंट लेने का तरीका हुआ? आंसर है नो. तो कॉन्ट्रैक्ट उसने बना लिया जोर जबरदस्ती करके, लेकिन जैसे ही बी पहुंचा तो उसने कोर्ट के अंदर बोल दिया कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इसको वॉइड कराना, घोषित कराना चाहता हूं क्योंकि मेरी जो परमिशन है वो स्लैप करके और थ्रेटन करके ली गई है. सो कॉन्ट्रैक्ट जो है विल बी सेट असाइड एज द शिप वॉज इंडियन एंड इट वॉज इन हाई सीज. इंडियन लॉ इज फुली एप्लीकेबल एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज लायबल टू बी सेट असाइड ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन. ठीक है. A contract made by coercion is bad in the eyes of law. ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी समझाया, इसी क्लास के अंदर समझाया है मैंने. ए जो है लीगली वेडेड वाइफ है बी की और ट्रबल रिलेशनशिप चल रहा है उनका, जो आजकल सभी कपल्स का चलता है ऑलमोस्ट. बी डज नॉट गिव हर एनी मनी फॉर हर एक्सपेंसेस एंड शी क्रिएट्स ड्रामेटिक सीन ऑफ कमिटिंग सुसाइड. हर ओनली कंडीशन फॉर नॉट कमिटिंग सुसाइड इज ट्रांसफर द हाउस गिफ्टेड टू हिम बाय अ सिस्टर अंडर हर नेम एंड अ गिफ्ट इज प्रॉपर्टी टू हर अंडर द लीगल कॉन्ट्रैक्ट. लेटर ही फाइल्स अ सूट इन दी कोर्ट ऑफ लॉ. सो कहती है मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी क्योंकि ना तो तू मुझे खर्चे के पैसे देता है, तो अब जो तेरी बहन ने मेरे को दिया है घर वो मेरे नाम पे कर दे, नहीं तो सुसाइड करूंगी यहाँ पे. तो यहाँ पर क्या होगा? अब कोर्ट केस ने कर दिया है, हस्बैंड ने कोर्ट में केस कर दिया है कि वाइफ से उन्होंने पैसे वापस, वाइफ से उन्होंने वो प्रॉपर्टी वापस देनी है. तो क्या वाइफ सक्सेसफुली डिफेंड कर पाएगी इस केस को और कीप कर पाएगी प्रॉपर्टी को? आंसर है इसका
She will lose the case as she entered into the contract by employing a coercion on her husband. So coercion is a ground for voidable contract, or her husband has exercised that right. The wife will lose the case as she entered into the contract by employing the method of coercion on her husband. Hence option B is correct. A contract made by coercion is bad in the eyes of law. Again वही लीगल प्रिंसिपल है. अमन जो है वो स्टेपसन है विनोद का और चाहता है कि उसके फादर उसे सारी प्रॉपर्टी दे दें. वन फाइन डे अमन अप्रोच विनोद और उसे कॉलर से पकड़ा टू कोवर्स हिम इनटू साइनिंग एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट वाज फेवरेबल टू बोथ साइड्स विद विनोद मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द प्रोसेस. राइट. Binod, in order to save himself and gave him the power of attorney to business establishment owned by Aman. Later, Binod files a case for police protection and attorney revocation. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो दो बंदे हैं, अमन स्टेपसन है विनोद का और चाहता है कि फादर उसको सारी प्रॉपर्टी दे दें. तो एक दिन अमन जाते हैं विनोद के पास और बोलते हैं कि साइन करो एग्रीमेंट पे. अब एग्रीमेंट फेवरेबल था दोनों लोगों के लिए, अमन के लिए भी और उसके स्टेप फादर विनोद के लिए भी. तो वो साइन कर देते हैं. लेटर विनोद कहते हैं कि नहीं, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है और अटॉर्नी रेवोकेशन के लिए मांगते हैं. तो ये जज आप देखिए, डिसाइड एज अ जज, क्या ये सक्सीड करेगा इन दी आइज ऑफ लॉ? बताइए. ठीक है, बताइए. और उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी है उसके साथ. The answer is कि the case will succeed as Binod and he will be entitled to police protection. आंसर है इसका कोर्जन. देखिए कॉन्ट्रैक्ट दोनों की पार्टीज के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की परमिशन जो है वो किस तरीके से ली गई. He held him from his collar to coerce him into signing an agreement. डायरेक्टली लिख दिया है. अब चाहे एग्रीमेंट विनोद के लिए जबरदस्त फायदेमंद हो, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में वॉइडेबल घोषित कराने के लिए उसको जा सकता है. In which of the following cases did the Supreme Court allow passive euthanasia under exceptional circumstances? Kindly अपना आंसर बताएं. किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है पैसिव यूथेनेशिया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अरुणा शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो ये ना एक नर्स थी और इसका जो मतलब रेप क्राइम जो इसके खिलाफ किया था, तो उसके बाद ना इसका गला घोट दिया था उस पर्सन ने, लेकिन ये मरी नहीं और ये वेजिटेटिव कंडीशन में चलेगी. वेजिटेटिव कंडीशन यानी कि जो लगे रहो मुन्ना भाई के अंदर एक वो पर्सन नहीं होता जो चेयर पे बैठा रहता है, वो जो व्हील चेयर पे बैठा रहता है, फर्स्ट वाली मूवी की बात कर रहा हूँ, मुन्ना भाई MBBS. तो वैसी सी सिचुएशन होगी कि सिर्फ आंखें हिला सकती थी और नेचुरल बॉडी फंक्शन जो है जैसे टॉयलेट यूरिन वो चल रहा था, बाकी सब में ये डेड हो चुकी थी, मतलब कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं. तो अरुणा शॉनबर्ग के केस के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि अगर पर्सन की ऐसी हालत हो जाए तो फिर उसको यूथेनेशिया मिल सकता है. ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो है वो मिल सकता है. Constitution of India was made hours and hours of amendments and discussion by the forefather of state. As a law student under Constitution of India, who is the ultimate sovereign? Who are the ultimate sovereign? कौन है अल्टीमेट जिसके पास पावर है? ये इसका आंसर बताइए आप. कौन है अल्टीमेट सोवरन? आंसर है इसका अल्टीमेट सोवरन जो है ना वो है भारत के लोग. बिकॉज हमारा प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब हम भारत के लोग. तो हम भारत के लोग सोवरन हैं और हमारे पास ही पूरी पावर है, हम ही लोग इलेक्ट करके इन लोगों को भेजते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज. आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पुराना रिपीट हो गया था, सो इसको आगे चलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल इन गवर्निंग द कंट्री एंड फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ वेरियस लॉज एंड कोड. While reading the Constitution of India as a law student, what do you think it lays out as a form of government for Indian citizens? कौन सा गवर्नमेंट है हमारा, कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है? बहुत ही सिंपल है ये तो. हमारा सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो इंडिया ने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम ब्रिटेन, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए और ऑपोजिशन ऑलवेज अलर्ट रहती है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. In which of the following judgment of the Constitutional Bench of Supreme Court of India, rarest of the rare principle in the award of death penalty was first laid down? Rarest of the rare principle. The answer is बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला कि कैपिटल पनिशमेंट जो इंडिया में है वो ओनली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर दी जा सकती है. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो यानी कि लेटेस्ट से आपने मर्डर किया किसी पर्सन का, आपका रंजिश थी उसके साथ, या वो आपका बंदा आपको तंग करता था, वॉट एवर स्टफ. इस केसेस के अंदर ना नॉर्मली है तो सही इसमें डेथ की पनिशमेंट, बट नॉर्मली आपको 20 ईयर्स तक की इंप्रिजनमेंट होगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, लाइक दैट. लेकिन अब जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी का मर्डर किया बाय
जैसे मान लेते हैं मर्डर किया, उसके बच्चे का मर्डर कर दिया और दोनों के फेसेस को पत्थर से मर्डर किया आपने, उन दोनों के फेसेस पे पत्थर फोड़ फोड़ के। अब ये बहुत ही ग्रूसम एक्ट है और ये रेयरेस्ट केस में आता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि पत्थर से कोई सर फोड़ के किसी का मर्डर कर रहा है। तो जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोग जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। दिस इज रोहित शर्मा, विशिंग यू अ वेरी गुड डे।